Hello बच्चों. So now we are going to start second video of linear equation, right? So now we are going to see what is the meaning of simultaneous linear equation, right? So two linear equation in two variable is called simultaneous linear equation. यानी बच्चों जब दो linear equation साथ में आ जाए then we call this as simultaneous linear equation. Is it clear? देखिए, this is one linear equation, this is another linear equation. So this two linear equation together is called simultaneous linear equation. ठीक है बच्चों? Now, what is the meaning of solution of simultaneous linear equation? Solution मतलब तो मालूम ही है आपको क्या है solution? It is a value of x and y which when substituted in the LHS will become equal to RHS. ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे suppose we have this two equation which together is known as simultaneous linear equation. Okay, and suppose I'm putting x equal to -1 and y equal to 2 in first equation. So you see this LHS is becoming equal to RHS. So I can say that x equal to -1 and y equal to 2 is the solution of this linear equation. Okay, now put the same value x equal to 1 and y equal to 2 here in this LHS. You will see that the LHS is becoming 2 which is equal to RHS. ठीक है बच्चों? So I can say that LHS is equal to RHS. So x equal to -1 and y equal to 2 is the solution of this equation also. So we can say that x equal to -1 and y equal to 2 is the solution of this simultaneous linear equation. Simple logic है बच्चों. यानी आप अगर इस इक्वेशन को पुट करो तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए और सेम वैल्यू को यहां भी पुट करो तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए. देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ठीक है बच्चों? तो सिंपल लॉजिक ये है कि दैट वैल्यू ऑफ x एंड y मस्ट सेटिस्फाई बोथ द लीनियर इक्वेशन. इज इट क्लियर? नाउ यू सी वी आर गोइंग टू सी थ्री कंडीशंस. तो देखिए बच्चों, अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है दो लाइन बनेगी. एम आई राइट और रॉन्ग? तो नाउ दिस इज वन सिचुएशन वेयर यू सी दैट दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ओके, नाउ यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, दिस इज सेकेंड लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ k कॉमा s यू सी लाई ऑन दिस लाइन. तो मैं क्या बोल सकता हूं k कॉमा s के बारे में बताइए. k comma s is the solution of this linear equation. सही बात. यहाँ पे u comma v lie on this line. Okay, so what I can say, u comma v is the solution of this line. ठीक है बच्चों? What about l comma n? Come on, tell me. What about l comma m? Don't you feel l comma m lie on this line? Suppose इस लाइन को मैं बोलता हूँ नंबर 1 and इस लाइन को मैं बोलता हूँ नंबर 2. So L comma M is the solution of line number 1 because it lie on line number 1. L comma M is the solution of line number 2 because it lie on line number 2 also. Is it clear? So it means that L comma M is the solution of both the lines. Both the lines. So that means my dear students, ये दोनों लाइन का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को कहते हैं सॉल्यूशन. Because this point lie on both the lines. Is it clear? So now how many solutions we have? We have only one solution because there is only one point that lie on both the lines. So this situation is called unique solution. Unique means one solution because there is only one point which is common to both the lines, or we can say that we have only one point that lie on both the line. Is it clear? Now next is condition of unique solution. याद रखिए बच्चों, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. इसका यूज मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी याद कर लीजिए. तो बच्चों मेन क्या क्या देखना है इस पूरे संदर्भ में, ध्यान से देखिए. दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट द इंटरसेक्शन पॉइंट. दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग ग्राफ. And this type of solution is called unique solution, means only one solution. Now condition of unique solution is a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Is it clear? अब बच्चों देखिए, अब देखिए ऐसा भी तो
ग्राफ बन सकता था, करेक्ट। ये एक लाइन है जो आपको दिख रहा है, और ये जो येलो कलर का मैंने ऊपर बनाया है बच्चों, ये दूसरा लाइन है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? यस, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया बच्चों, ठीक है। तो जो पहला लाइन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1, और जो दूसरा लाइन है येलो कलर वाला लाइन, उसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू 0। तो क्या समझा आपने कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया, करेक्ट। देखिए पहले दो लाइन ऐसे थे इंटरसेक्टिंग, है ना। अभी लाइन ऐसे हो गए, एक के ऊपर एक। जैसे ये आपका स्केच पेन है, स्केच पेन के ऊपर आ गया पेन, ठीक है बच्चों। देखिए स्केच, तो ये सिचुएशन को बोलेंगे को इंसाइडिंग लाइन्स। को इंसाइडिंग लाइन्स या तो ओवरलैपिंग लाइन्स, यानी एक के ऊपर एक। आगे बच्चों समझ में, पहले आपने पढ़ा था ऐसा, तो यहाँ पे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। अभी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसे क्या समझ में आया कि ऐसे लाइन को बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन। चलिए अब लगाते हैं लॉजिक। नाउ यू सी a1 b1 किसके ऊपर में है? कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो इसके ऊपर में है, कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो इसके ऊपर में है, कोई बच्चा बोलेगा सर दोनों के ऊपर में है। तो सही आंसर क्या है बच्चों? तीनों आंसर सही है, लेकिन द परफेक्ट आंसर इज a1, b1 lie on both the lines. Okay, so can I say that a1 b1 is the solution of both the line? Yes, because this point lie on both the line. अब बच्चों बताइए what about this point? ये पॉइंट भी बच्चों दोनों लाइन के ऊपर में है, ये ब्लैक लाइन के ऊपर भी है, येलो लाइन के ऊपर भी है, ठीक है बच्चों। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट अगेन इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। Similarly, this point is again equation of solution of both the equation. This point is again solution of both the equation. Is it clear? तो क्या बच्चों को समझ में आया कि ये सारे जो पॉइंट दिख रहे हैं ये दोनों लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए मैं इनको क्या बोल सकता हूं solutions. So we have many solutions, okay. We know that there are infinite points that lie over the line, so there will be infinite solutions in this case. तो इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों? इनका नाम होना चाहिए infinite many solutions, means it has uncountable solutions, and the graph should be coinciding graph, और सिंपल अंग्रेजी में बोल सकते हैं ओवरलैपिंग ग्राफ। क्या बोलेंगे बच्चों? ओवरलैपिंग ग्राफ, ओके। और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। क्या बोलेंगे? को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। सो द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन याद रखिए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग। तो ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन में लाई करते हैं, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कैसे होगा? एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे हर वो पॉइंट जो एक लाइन में आता है वो दूसरे लाइन में भी आएगा। सो दैट मीन्स एवरी पॉइंट इज द solution here because every point lie on both the lines. So we call this as consistent. Consistent मतलब बच्चों solution का होना। Consistent मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो having solution। एक solution भी हो सकता है, बहुत सारा solution भी हो सकता है, उसको बोलेंगे consistent। ठीक है बच्चों, जैसे दो दोस्त हैं, दो दोस्त के बीच में मान लीजिए बहुत सारा जो सजेशंस हैं वो कॉमन रहते हैं, तो आप उन दोस्तों को क्या बोल सकते हैं? यू पीपल आर कंसिस्टेंट बिकॉज उनके पास में सॉल्यूशंस है, वो एक होगा या बहुत सारा होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए दो लाइन ऐसा भी तो हो सकता है। सो दिस टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, आप बताइए, लॉजिक लगाइए
कि ये दोनों पैरेलल लाइन का कौन सा पॉइंट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर आता हो, या कोई भी ऐसा पॉइंट है बच्चों जो दोनों लाइन के ऊपर आएगा? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज अगर मैं ये पॉइंट को लूंगा, इस इक्वेशन का नाम मैं 1 बोल देता हूँ, इसका मैं 2 बोल देता हूँ, सो दिस पॉइंट लाई ऑन 1, दिस पॉइंट डजंट लाई ऑन 2. If I take this point lie on 2, it does not lie on 1. So what I can say? I can say that there is no point which is common to both the lines, and hence we don't have any solution. Because solution means what? Common point. And here we don't have common point. समझे बच्चों? तो दिमाग में एक चीज दिमाग में अच्छा से रख लीजिए, एक सिंपल तरीके में, कि सॉल्यूशन मतलब होता है कॉमन पॉइंट. ओके, और इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. तो इसका नाम क्या होना चाहिए, खुद बताइए. यस यस कम ऑन, इसका नाम होना चाहिए नो सॉल्यूशन. मींस इट हैज नो सॉल्यूशन. कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. ये दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है. इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन ओपिनियन नहीं है. अगर एक बोलेगा कि मेरे को इडली पसंद है, दूसरा बोलेगा मेरे को इडली खाने से उल्टी हो जाता है. अगर एक ये लाइन बोलेगा यार मेरे को तो पूरी बहुत पसंद है, ये बोलेगा यार मुझे तो पूरी से एलर्जी है. मतलब ये दोनों लाइन ऐसे हैं बच्चों जो कभी भी कॉमन ओपिनियन रखेंगे नहीं. दे आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. क्लियर है? और इसका जो कंडीशंस है बच्चों, कंडीशंस है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. और इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मतलब बच्चों नो सॉल्यूशन. इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लें, छोटी सी रिवीजन. तो रिवीजन में ध्यान से देखिए मैं यहां बनाता हूं, पेपर नहीं है. तो पहला बात, ऐसा जो लाइन बनते हैं बच्चों इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. ध्यान से देखिए. और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको बोलेंगे सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूशन. बिकॉज दिस पॉइंट लाई ऑन बोथ द लाइंस. तो सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, याद रखिए क्या है, कॉमन पॉइंट. ठीक है बच्चों. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कहते हैं, ये जो नाम है ये है यूनिक सॉल्यूशन. और इसका जो कंडीशन है याद रखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. ठीक है बच्चों. नाउ अगर एक लाइन ऐसा है, इसके ऊपर ही दूसरा लाइन भी आ रहा है. एक लाइन मान लीजिए रेड है, दूसरा ग्रीन है, इसी के ऊपर आ गया है ना बच्चों. दो लाइन एक के ऊपर एक है, तो इसको मैं बोलूंगा व्हाट, इनफाइनाइट. क्या बोलूंगा बच्चों? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों. तो इसको आप क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. ठीक है बच्चों. इन दोनों के पास सॉल्यूशन है. इसके पास एक सॉल्यूशन है, इसके पास बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट. क्या बोलेंगे बच्चों? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन का होना. तो ये कंसिस्टेंट याद रखिए, कंडीशन याद रखिए. एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ एंड दिस इज कोइंसाइडिंग ग्राफ. ठीक है बच्चों. अगर मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे होता है, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन है बच्चों? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन. भाई आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आप एक दूसरे के दुश्मन हो, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. और इसका जो कंडीशन क्या है बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये याद रखिएगा. उसके बाद इसका ग्राफ का नाम है पैरेलल लाइंस. ठीक है बच्चों. क्या है? पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस आते से समझ जाना कि ये है व्हाट, नो सॉल्यूशन. इंटरसेक्टिंग आते से समझ जाना ये है यूनिक सॉल्यूशन. कोइंसाइडिंग आते से समझ जाना इसमें तो हर पॉइंट कॉमन है.
every point lie on both the lines, so there are infinite solutions. तो ये जो लाइन है बच्चों, ये एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. यानी अगर एक फ्रेंड ने कुछ बोल दिया कि भाई मुझे इडली खाना है, तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलेगा, भाई मुझे भी इडली खाने का मन कर रहा है. अगर एक फ्रेंड ने बोला चलो बच्चे शाहरुख खान का पिक्चर देखते हैं, तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलेगा, जरूर यार शाहरुख खान का ही देखेंगे. जैसे राम और लक्ष्मण है बच्चों, दे कम्स अंडर दिस लॉजिक, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज राम और लक्ष्मण के बीच में कोई मतभेद नहीं है. जो राम बोलेगा लक्ष्मण ब्लाइंडली उसको फॉलो करेगा. ठीक है बच्चों. और ये जो फंडा है ये दो दुश्मनों का है, यानी एक जो बोलेगा दूसरा बोलेगा यार मुझे वो करना ही नहीं है. और ये जो है बच्चों ये आम लोगों का है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें कोई एक पॉइंट ऐसे होगा जिसमें दोनों बोलेंगे ठीक है भाई हम इस बात से सहमत हैं. तो यहाँ एक बात की सहमति है, यहाँ अनेकों बात की सहमति है, और यहाँ किसी भी बात की सहमति नहीं है. तो बच्चों हमेशा मैथ्स को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, बिकॉज प्रैक्टिकल में हम स्ट्रांग हैं, प्रैक्टिकल से दोस्ती हमारी है. तो मैथ्स को हमेशा प्रैक्टिकल के नजरिए से देखिए. ठीक है बच्चों, करेक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ये सारे कंडीशंस को लिख के बढ़िया से व्हाट्सएप कर दीजिए. तो आज का मेन हाईलाइट था यूनिक सॉल्यूशन, infinite many solutions, no solutions and their conditions, and simultaneous linear equations. Okay, that's all for today's class.